মাতৃগর্ভে নয়, পিতৃগর্ভে যার জন্ম। मानधाता, माँ के गर्भ से जिसका जन्म नहीं हुआ वही मानधाता हुआ। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে যাকে ওম রূপে মহাদেব দর্শন দেন, जो कि वैराग्य में आकर के कई वर्षों तक एक पैर पे जिन्होंने तप किया, साधना की, ओमकारनाथ सिद्ध किया, और भगवान शंकर आस्तु से पर ब्रह्म परमेश्वर ने प्रसन्न होकर के ओम के रूप में यहाँ पे दर्शन दिया है। যে মন্দিরের দ্বাররক্ষক স্বয়ং ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। पूरे विश्व के अंदर यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ ब्रह्मा विष्णु मुख्य द्वार पे द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। যে স্থানে বিবাহ হয় অসুর কন্যার সাথে শ্রীকৃষ্ণের নাতির। उषा अनिरुद्ध विवाह परिणय स्थल। उषा बाणासुर की बेटी, अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के बेटे हुए, उनका विवाह इसी स्थान पे संपन्न हुआ। उषा के नाम से उषा मठ नामकरण हुआ। যে স্থানে অবস্থান করে পঞ্চ কেদার একসাথে। 5 केदार उत्तराखंड हिमालय में हुए, जिनके मंदिर सारे हिमालय में। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पाप प्रणाशनम। और पंच केदार का गद्दी स्थान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए सभी का सौभाग्य है कि यहाँ पे पंच केदार का दर्शन लाभ मिलता है। শীতকালীন কেদারনাথ ও মধ্য মহেশ্বরের পুজোর সৌভাগ্য প্রাপক যে স্থান। और मुख्य रूप से केदारनाथ मध्यमेश्वर जी का शीतकालीन पूजा यहाँ होता है। भगवान की जो भोग मूर्तियाँ होती है, जिनका 6 महीने यहाँ भोग लगता है, 6 महीने हिमालय में लगता है। আজ আপনাদের নিয়ে চলে এসেছি সেই স্থানে, উখিমঠ। হরিদ্বার থেকে প্রায় 200 কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের কোলে এক ছোট্ট জনবসতি। চোপতার রোহিণী বুগিয়াল তুঙ্গনাথ ট্রেকের শেষে যেখানেই ছিল আমাদের এক রাতের আস্তানা। চোপতা অসাধারণ সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও আজ চোপতাতে না থেকে মহাদেবের দর্শন লাভের আশায় আমরা চলে এসেছি এই প্রাচীন পৌরাণিক পাহাড়ি শহর উখিমঠে। পুরাণ বর্ণিত বান রাজার রাজ্য। বান রাজার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, যার নাম উষা। তার নামেই পূর্বের শোনিতপুরের নামের পরিবর্তে হয় উষা মঠ, যা অপভ্রংশ হয়ে এখন উখিমঠে রূপান্তরিত। উখিমঠ ঢোকার মুখেই, মানে মন্দিরে ঢোকার মুখেই মন্দির সম্পর্কে কিছু জিনিস হিন্দি এবং ইংলিশে লেখা আছে, চাইলে অবশ্যই পড়ে নিতে পারেন। আবার এখানে অনেক রকমের দোকানগুলো, সেরকম দোকানও আছে যেখানে আপনারা কাউকে গিফট দেওয়ার জন্য কোনো কিছু কিনতে চাইলে কিনতে পারেন। খুব সুন্দর লাগলো জিনিসটা, এখানে রুদ্রাক্ষগুলোকে কালার করে সুন্দর বেশ শোপিস করা আছে। এটা হচ্ছে সেই গেট, দেখলেই বুঝতে পারবেন এর কাজগুলো সেই অপূর্ব গাড়োয়ালি কাজ এবং বহু প্রাচীন। এই বান রাজা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পরম শত্রু। এদিকে বানকন্যা উষা প্রেমে পড়ে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের। এই প্রণয় লীলার প্রধান দূতি ছিল উষার প্রিয় সখী চিত্রলেখা। তারই সহায়তায় উভয়ের মধ্যে জন্মায় প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা। ক্রমে উষার মধ্যে মাতৃত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ খবর জানতে পারে বান রাজা। বন্দী হন অনিরুদ্ধ, আর সেই খবর শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছালে শ্রীকৃষ্ণ বানাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ভয়ঙ্কর সে যুদ্ধ। অবশেষে মহাদেবের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ বন্ধ করতে সম্মত হন। রক্ষা পায় বান রাজার প্রাণ। মিলন ঘটে অনিরুদ্ধর সাথে উষার। উখিমঠের অনতি দূরে শোনিতপুরে এখনো বান রাজার দুর্গ প্রাকারের ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ে। উখিমঠের মন্দির তোরণ এবং মন্দিরের অভ্যন্তর রাজপ্রাসাদের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। প্রশস্ত মন্দির চত্বর। তবে মন্দিরটি ওঙ্কারেশ্বর মন্দির। এখানে ওমকার রূপে ভগবান শিবের অধিষ্ঠান। রাজা মান্ধাতা
বহু প্রাচীন বোঝাতে যার নাম আমরা সবসময় ব্যবহার করে থাকি। এখানে সেই মানধাতার পাথরের মূর্তি বর্তমান। পুরাণ মতে রাজা যুবন্যাসের পুত্র এই মানধাতা, যার অর্থ যিনি মাতৃগর্ভে জন্ম নেননি। মানধাতা ছিলেন দানশীল এক রাজা, যিনি এই স্থলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ 12 বছর মহাদেবের তপস্যা করেন এবং মহাদেব তাকে ওমকার রূপে দর্শন দেন এবং এখানেই স্থিত হন। মূল মন্দিরে আছে সেই ওমকার রূপে মহাদেবের অবস্থান, আছে মানধাতা ও পঞ্চকেদারের প্রস্তর। মূল মন্দিরের ডান দিকে আছে পঞ্চকেদার শিবলিঙ্গ, বাম দিকে আছে সেই উষা এবং অনিরুদ্ধের বিবাহস্থল, যেখানে রাখা হয় শীতকালীন কেদার ও মদমহেশ্বরের ডলি। এখন আপনারা আমার ঠিক পিছনে যে মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে হচ্ছে কেদারনাথের ডলি থাকে এবং এখানেই হচ্ছে অনিরুদ্ধ এবং উষার বিবাহস্থলটা আছে। এবং মূল মন্দিরে নভেম্বর থেকে এপ্রিল 6 মাস কেদার ও মদমহেশ্বরের যোগ মূর্তি পূজিত হয়। চলুন এখানের প্রধান পুরোহিতের কাছে এই মন্দির সম্পর্কে কিছু কথা শুনে নেওয়া যাক। ঠিক আছে। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्वपाप प्रणाशनम। ये पंच केदार का गद्दी स्थान ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है, इसमें महाराजा मानधाता की जो है पत्थर की ध्यानावस्थित मूर्ति है। तो महाराजा मानधाता जी एक बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा, इक्ष्वाकु वंशीय राजा हुए हैं, जिन्होंने कि मानधाता, माँ के गर्भ से जिसका जन्म नहीं हुआ वही मानधाता हुआ, जो कि वैराग्य में आकर के कई वर्षों तक एक पैर पे जिन्होंने तप किया, साधना की, ओमकारनाथ सिद्ध किया और भगवान शंकर आस्तु शिव पर ब्रह्म परमेश्वर ने प्रसन्न होकर के ओम के रूप में यहाँ पे दर्शन दिया है। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। भगवान का शिवलिंग है ओमकारेश्वर रूप में, और सुबह भगवान का बाल भोग, महाभोग, अभिषेक पूजा संपन्न होता है, श्रृंगार हो जाता है, दिन भर श्रृंगार रहता है, शाम को आरती दर्शन होता है। ओमकारेश्वर महादेव ऊखीमठ के नाम से मुख्य रूप में जाना जाता है। और 5 केदार उत्तराखंड हिमालय में हुए, जिनके मंदिर सारे हिमालय में। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पाप प्रणाशनम। और पंच केदार का गद्दी स्थान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए सभी का सौभाग्य है कि यहाँ पे पंच केदार का दर्शन लाभ मिलता है। पंच केदार में केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ। भगवान ने हिमालय में पृष्ठभाग से 5 रूपों में पांडवों को दर्शन दिया है, ऐसी मान्यता परंपरा है। क्योंकि केदारनाथ में पृष्ठभाग, मध्यमेश्वर मध्यभाग, नाभि, तुंगनाथ हृदय भाव, रुद्रनाथ मुख, कल्पेश्वर जटा दर्शन है। और मुख्य रूप से केदारनाथ मध्यमेश्वर जी का शीतकालीन पूजा यहाँ होता है। भगवान की जो भोग मूर्तियाँ होती है, जिनका 6 महीने यहाँ भोग लगता है, 6 महीने हिमालय में लगता है, तो आने जाने का उत्सव डोली अलग होता है, अलग अलग परंपराएं हैं। तो केदार बाबा और मध्यमेश्वर बाबा की जो भोग मूर्ति होती है, उनका शीतकालीन पूजा यहाँ होता है। तुंगनाथ जी का मुक्कोमठ में, रुद्रनाथ जी का गोपेश्वर में, कल्पनाथ में 12 मास कपाट खुला रहता है। तो केदारनाथ, पंच केदार की भोग मूर्तियाँ, केदारनाथ, मध्यमेश्वर और तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ। इधर पंच केदार लिंग दर्शन है, वाराही माता है, भैरवनाथ जी हैं। इधर केदार बाबा का गद्दी दर्शन है। उषा अनिरुद्ध विवाह परिणय स्थल। उषा बाणासुर की बेटी, अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के बेटे हुए हैं, उनका विवाह से स्थान पर संपन्न हुआ। उषा के नाम से उषा मठ नामकरण हुआ। उसी के बाजू में शक्ति का विग्रह है, महाशिवा भगवती चंडिका माता के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है, तंत्रपीठ है, सारी मूर्तियाँ लीनाविराम हैं। पूरे विश्व के अंदर यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ ब्रह्मा विष्णु मुख्य द्वार पे द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे समस्त देश विदेश के श्रद्धालु भक्त तीर्थ यात्री लोग आते हैं और अपनी अपनी साधनाओं को करते हैं और निस्संदेह मनोवांछित फल की उनको प्राप्ति होती है और अपने मनोरथ को सिद्ध करते हैं।
ये यहाँ पे उषा विवाह मंडप है, जिसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ पे शादियाँ होती हैं। मंडप का अगर कोई दर्शन करता है, किसी के विवाह में अगर मांगलिक ग्रह उसके हैं तो उसके दर्शन मात्र से उसका विवाह हो जाता है। और यहाँ पे 12 मास तीर्थयात्री आते हैं और पुण्य यजन लाभ अर्जित करते हैं। सबका कल्याण हो, सबकी सुख समृद्धि हो। हर हर महादेव। अच्छा, वो जो चंडिका माता जहाँ पर है ना, वो वहाँ पर 4 जो मूर्ति थे उसके दाएं तरफ, वो किसका है? वो शक्ति के विग्रह हैं। अच्छा अच्छा, और माता का ही रूप है। वो सब माता की रूप। और इधर जो भैरवनाथ के इधर ये जो पंचलिंग है, उसके बगल में जो जितना सारा मूर्ति है, उधर तो कुबेर जी भी है, विष्णु जी भी है, महादेव जी भी सब है, हैं। सबका मूर्ति सब है। है ये बिल्कुल। तो ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ? ये सब प्राचीन है। हाँ, ये सब बहुत प्राचीन है। ये तो देख रहे हैं। तो ऐसे हम लोग के उधर होता है ना कि बहुत सारा प्राचीन ऐसे मूर्ति मिट्टी के अंदर है, वो खोदकर बाहर निकलते हैं। ये सब क्या ऐसा ही है? ये सब प्राचीन काल से ही है। और ये जो मंदिर है, कितना पुराना होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा कहते हैं 5000 वर्ष पुराना है, लेकिन भगवान के बारे में कोई नहीं बता सकते। और ये जो विवाह स्थल है, वो भी इतना ही पुराना है। बिल्कुल। अच्छा, এই মন্দিরের সন্ধ্যারতি অবশ্যই দেখবেন। এখানে মন্দির চত্বরে এমন একটা পজিটিভ ভাইবস কাজ করে যা খুব কম জায়গায় উপলব্ধ হয়। অবশ্য সবটাই মানসিক ব্যাপার, আত্মার শান্তি। আমি প্রিয়াঙ্কা, দীপান্তর দ্য এক্সপ্লোরারকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যাই ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, জানাই সেখানকার ইতিহাস, দেখাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আর এই ধরনের ভিডিও যারা পছন্দ করেন তারা সঙ্গে থাকতে পারেন, আমার সঙ্গে থাকতে পারেন দীপান্তর দ্য এক্সপ্লোরারের। অসংখ্য ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য।